Well, good morning, dear students. Hope you're all enjoying a good health. Yes, we are going through our chapter body movements. Okay, and so far हमने क्या क्या कर लिया बच्चों? We have dealt in details about skeleton from skull to foot. स्कल से लेके आपके पांव के पंजों तक जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, उसके बारे में. फिर हमने किसके बारे में डील किया है, किसके बारे में पढ़ा है? जॉइंट्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, हाउ दे बिहेव, वन वे, ऑलमोस्ट इन ऑल डायरेक्शन, और अपवर्ड, बैकवर्ड, पाइवट, साइडवेज, ball and socket, like that. Okay, then we have gone through about muscles also. Muscles, they always act in pairs. If one is contracting, the other one will relax. They are present in pairs. So when the second one will contract, the first one will relax, so that there is a movement in the body parts. Okay, muscles, the movement in animals with legs. Legs का मैंने क्या बताया था आपको? That in movement also, that Newton's third law of motion is playing a vital role. कैसे? For every action there is a equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. Okay, चलिए. Then we have studied how birds fly. ठीक है, उसमें क्या था? What we have done? Downstroke and the upstroke. When the downstroke is there with the wings for a limb is converted into wings in case of birds. With the help of wings, what? There is a downstroke. The bird is doing what? He is pushing the air downward and backward, and then he is flattening or straightening the wings when the upstroke is there, just to avoid, to nullify the effect of downward stroke. When he is pushing the air downward and backward, what the air will do? Equal and opposite. यानी कहने का मतलब डाउनवर्ड उसको अपवर्ड करती है, बैकवर्ड उसको फॉरवर्ड करती है, एंड द बर्ड्स आर इन ए पोजीशन टू फ्लाई. उनकी बॉडी स्पेसिफिक है, उनकी जो ब्रेस्ट बोन है वो कील बहुत ज्यादा डेवलप होती है, सो दैट देयर कैन बी अटैचमेंट ऑफ गुड हाई, यानी गुड अमाउंट ऑफ फ्लाइट मसल्स. ओके, देन देयर यू कैन से दैट देयर बोन्स आर हॉलो, porous, light bones. Okay, so like that. Other factors are also favorable for the flying of the bird. Then now coming to, this is all about, we are human beings. What we are doing when we are straightening our leg? What we are doing at the time of walking? We are pushing the earth downward and backward, and the earth is pushing the body what? Forward and upward. So we are in a position to move, and we are balancing our body with the help of hands. आपने देखा होगा बच्चों, you cannot move without moving your hands. अगर आप अपने hands को ऐसे करके दौड़ना चाहो, दौड़ सकते हो. Yes, दौड़ सकते हो, but speed will be very, 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 very slow. For balancing, आप कई बार क्या होता है बच्चों, गिरने लगते हो ना, तो आप अपने हाथों को ऊपर उठाते हो. Just इन आपके हैंड्स एंड लेग्स के अंदर कोऑर्डिनेशन है, हैंड्स मसल एज वेल एज लेग मसल, एंड यू आर इन अ पोजीशन टू मूव. नाउ दिस इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट बर्ड्स आल्सो. दे आर हैविंग लेग्स, फोर लिम्स, दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू विंग्स. सो दैट मींस दे आर हैविंग लिम्स. हाथ पांव हैं उनके, चाहे वो फीदर्स में कन्वर्ट हुए हैं और विंग्स में कन्वर्ट हुए हैं. ओके, सो व्हाट अबाउट द मूवमेंट इन केस ऑफ व्हाट? एनिमल्स विदाउट legs, as like earthworm, snail. Okay, then fish. This snail and earthworm, it is a non-vertebrate. Non-vertebrate means without having bones
ऐसे एनिमल है जिनके अंदर बॉनी स्ट्रक्चर नहीं है, दे आर विदाउट बॉन्स, एंड फिश इज हैविंग ए वर्टिब्रा कॉलम, ये बॉनी है, इनके अंदर स्केलेटन है, फिश एंड स्नेक, फिश एंड स्नेक. So we will study one by one. Even if this lesson is this lecture is extended by a few minutes, we will extend and we will try to finish it. Okay. Coming to the movement in animals without legs. First of all, earthworm. earthworm में क्या है बच्चों? आपने देखा होगा केंचुआ जिसको बोलते हो आप. ओके, केंचुआ का क्या है बच्चों? सेगमेंटेड बॉडी है उसकी, कंपार्टमेंट्स बने होते हैं. ओके, segmented body have circular and longitudinal muscles. They are not having biceps and triceps muscles. They are having what? Circular and longitudinal muscles. Circular means जैसे आपका ये गोल. ओके, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे मतलब सिकुड़ेंगे, तो क्या होगा? दे विल इंक्रीज इन लेंथ. जैसे आपका एक वो डग है, चपाती बनते हैं, गोल है ना, वो राउंड है, उसको प्रेशर से हम जब वो क्या होता है, दबा रहे हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रेशर से चपाती फैल जाती है. लाइकवाइज व्हेन सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, दे एक्सटेंड, दे इंक्रीज इन साइज, एंड व्हेन दिस लॉन्गिट्यूडनल जो लंबा है, कोई चीज ऐसे लंबी है, इसे आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, छोटा करोगे, तो क्या होगा? उसकी मोटाई, गोलाई बढ़ जाएगी. वो यानी जब इसको हम इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा? ये बीच में से ऊपर हो जाएगा. सो विद द हेल्प ऑफ दिस देयर इज अ वेव लाइक मूवमेंट. आपने कभी कैमल को भी चलते देखा होगा ना, और अर्थवर्म को भी आपने चलते हुए देखा होगा. नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द पिक्चर्स पोजीशन A, B, C and D. Okay, I should be away from the board. You can see the board clearly. This is position A. Okay, when the earthworm is at rest, that means it is not moving. Now it is position B. अब क्या है बच्चों? इस segmented body के अंदर, उसके अंदर क्या है बच्चों? Circular and longitudinal muscles है. अब क्या करता है earthworm? और सबसे बड़ी बात क्या बच्चों? इसके अर्थवर्म के कोई पांव नहीं है, देयर आर नो फीट विदाउट लेग्स, बट देयर आर ब्रिसल्स. ये जो सेगमेंटेड होते हैं नीचे, उनके एक वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से होते हैं, मस्कुलर. दे कैन मेक ए ग्रिप इन द अर्थ. घास पे, जमीन पे चलता है जब ये, तो एक ग्रिप बना सकता है, उसको जकड़ सकता है, पकड़ सकता है. ओके, अब क्या होता है बच्चों? इन द फर्स्ट स्ट्रोक what it is doing to move forward, वो क्या करता है बच्चों? The earthworm contracts circular muscles of the front segment. अब ये जो फ्रंट वाला सेगमेंट है, इसके मसल्स को, जो सर्कुलर मसल्स है, उनको वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. इससे क्या होगा? वो लंबे हो जाएंगे. एंड इट लिफ्ट्स इट्स ब्रिसल्स, यानी ब्रिसल जो उसने जमीन को ये जकड़ा हुआ होता है यहां से, उनको वो ऊपर उठा लेगा. दे विल बी अबव द अर्थ. उससे क्या होगा? ये जो आगे वाला सेगमेंट है इसका थोड़ा लंबा होके इस जगह से आगे चला गया. ओके, यानी कि उसकी बॉडी आगे से एक्सटेंड हो गई. नाउ नेक्स्ट व्हाट ही विल डू? ये जो आगे वाले जो ब्रिसल्स थे बच्चों, वो यहां पे इनको जमीन से जकड़ लेगा. पीछे वाले जो ब्रिसल्स पहले जमीन के साथ उसने अर्थ को जकड़ा हुआ था, उनको लिफ्ट कर लेगा. नाउ ये जो मसल्स लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के में कन्वर्ट हो गए सर्कुलर, ये क्या होगा? जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को आप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी पहले फ्रंट वाले पोर्शन के उसने जो सर्कुलर मसल्स थे उनको कॉन्ट्रैक्ट किया. इट हैज इलोंगेट, इसकी बॉडी क्या हो गई? इलोंगेट हो गई. नाउ दिस elongated body will contract its longitudinal muscles. वो इकट्ठे हो जाएंगे और पीछे वाला, आगे वाले ब्रिसल्स से वो जमीन को पकड़ लेगा और पीछे वाले जो है ब्रिसल्स को उठा लेगा. एंड ये जो पीछे वाले मसल, पहले क्या था? आगे वाले सर्कुलर मसल्स क्या हुए थे?
कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। इन द सेकेंड सी स्टेप, आफ्टर होल्डिंग द अर्थ, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड बैक पोर्शन के सर्कुलर मसल्स दे कॉन्ट्रैक्ट। अब उससे क्या होगा, आगे वाला जो उसका बॉडी है, लॉन्गिट्यूडनल मसल से ये वाली जो लंबी हो गई थी वो छोटी हो जाएगी, और ये जो पीछे वाली उसका बैक पोर्शन है वो लंबा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में वो इससे इसने होल्ड किया हुआ है। नाउ द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ दिस बैक पोर्शन विल आल्सो बी कॉन्ट्रैक्टेड एंड अगेन द earthworm will take the same shape, position A। अब क्या हुआ बच्चों, it was here, जब ये लंबा हुआ आगे वाली बॉडी थोड़ी आगे चली गई, वहां से उसने क्या किया, जमीन को होल्ड कर लिया। तो जब वो पीछे वाली बॉडी को फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को, वो पीछे वाला बैक पोर्शन आगे आ जाता है, इतना वो थोड़ा सा वो जर्ब के साथ ऐसे आगे वो, सो कॉन्टिन्यूसली देयर इज ए वेव लाइक मूवमेंट। कहने का मतलब क्या है, अर्थवॉर्म पहले क्या करता है, आगे वाले पोर्शन को लिफ्ट करता है, लंबा होता है, जकड़ता है, फिर पीछे वाले को लिफ्ट करता है, छोटा होता है। कहने का मतलब क्या है, वेव लाइक। सो आपने कभी अर्थवॉर्म को देखा हो चलते हुए, वेव लाइक मूवमेंट इज देयर, दो इट इज बिट स्लो बट स्टिल इट मूव्स लाइक दिस। ओके, कहने का मतलब क्या है, विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, फर्स्ट फ्रंट पोर्शन के सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर ब्रिस्टल्स को लिफ्ट करता है, फिर ब्रिस्टल्स के साथ आगे वाले ब्रिस्टल के साथ जमीन को होल्ड करता है, पीछे वाले को लिफ्ट करके सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसके लॉन्गिट्यूडनल। अब थर्ड स्टेज के अंदर आके डी फाइनल पोजीशन जो होती है, पीछे वाले भी जब मसल को वो लॉन्गिट्यूडनल मसल को वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बॉडी विल स्क्वीज एंड इट विल गो अ बिट फॉरवर्ड। तो कहने का मतलब क्या है, धीरे धीरे करके वो वेव लाइक, जैसे ऊंट भी चलता है ना झटके ले लेके ऐसे ऐसे, तो आप कभी देखना जैसे लहर सी चल रही होती है, एज लाइक दैट द अर्थवॉर्म moves. So this is the movement in animal without leg, in particular the earthworm. Now come to the snail. Yes, snail क्या है बच्चों? This animal is also having what? Exoskeleton. ये जो shell है बच्चों इसका, it is exoskeleton. It is not made up of bones again. It is also a non-vertebrate animal. Okay? But क्या है इसके अंदर, ये जो मस्कुलर क्या है बच्चों, जो उसकी बॉडी जो है, it is having a muscular body which it can, you can say that take it back into the shell at the time of when you can say he is seeing some danger. कहने का मतलब क्या है, if some animal is going to attack this snail, what it's doing, it is withdrawing its muscular body inside the shell. तो ये जो shell है बच्चों, इसका protective cover है, it is not, you can say otherwise having any specific function. Okay, तो ये जो shell है इसको protect करता है। Okay, then again ये जो muscular, ये flaccid muscular foot है बच्चों। Okay, जैसे कहते हैं ना, कई बार देखा होगा बच्चों आपने, बचपन में जब क्या कहते हैं क्रॉल करता है एक बेबी, तो वो अपने घुटनों के बल, अपने कोहनियों के बल क्रॉल करता है। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं, आपने देखा होगा बच्चों, वो पेट के जब लेटते हैं ऐसे, पेट के बल क्रॉल करते हैं, आप लोग खिसकाते हैं आगे आप। सेम वे ये जो स्नेल है बच्चों, इट आल्सो इज ए व्हाट, उसको गैस्ट्रोपोड बोलते हैं, इट्स ए बेली फुटेड। ये जो उसकी पेट है, बेली है, वो पांव का काम करती है। वो क्या करती है, पांव का काम करती है। कैसे पांव का काम करती है, ये जो उसकी बेली के जो मसल्स हैं, उसके पेट के जो मसल्स हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। दैट मीन्स दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड देयर इज ए वेव लाइक मूवमेंट, सेम एज इन केस ऑफ अर्थवॉर्म। यानी कि वही
पहले फ्रंट वाले, फिर पीछे वाले, फिर फ्रंट वाले, फिर पीछे वाले, ऐसे वो वेव लाइक मूवमेंट है। एंड इट इज अ वेरी स्नेल इज अ वेरी 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 स्लो मूवर। इट जस्ट कवर्स अबाउट 1 मीटर इन 1 आवर, यानी कि 1 मीटर जो है करीब करीब 1 घंटे के अंदर कवर करता है। अक्सर आपको बच्चों बारिश के दिनों में आपको पॉन्ड्स के किनारे, कई बार नहर के किनारे, एंड इफ यू हैपन टू विजिट ए कोस्टल एरिया, सी शोर, वहां आपको ये अक्सर समुद्र के किनारे मिल जाते हैं। आप सैर कर रहे हो, आप उसको चलता हुआ एक लाइन सी बनाता हुआ जाता है वो अपने किसके साथ, गैस्ट्रोपोड के साथ, अपने उस बेली फुट के साथ, मस्कुलर फुट के साथ, तो एक लाइन सी। और अगर आप घूम आए, देख आए, तो आपने देखा होगा when you are going on the other side, it was here, after half an hour it will be here only. That means it has covered a distance of half a meter. So it's a very very slow mover, and it is known as a gastropod, and gastropod means the belly footed। कहने का मतलब क्या, पेट जो है उसका मस्कुलर जो फुट बनता है वो बेली का बनता है, ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेली फुटेड और गैस्ट्रोपोड। और इसकी वो जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मूवमेंट है वेव लाइक, दैट इज ऑलमोस्ट सेम एज इन केस ऑफ अर्थवर्म, सो नाउ दिस स्नेल एंड अर्थवर्म दे आर नॉन वर्टिब्रेट्स, इनके हड्डियां नहीं होती, मस्कुलर बॉडी है इनकी केवल। यस, इन केस शेल इज देयर, बट शेल इज ए प्रोटेक्टिव सेल। और जब ये मूव करता है ना ये स्नेल, तो ऐसे लगता है दैट दिस स्नेल इज ड्रैगिंग द शेल ओवर इट्स बॉडी, ओके। Sorry. Now coming to another animals, fish and snake, which are having a skeleton system, but they are again without legs. Fish is not having legs. So there are certain peculiar characters in case of fish, which helps in the movement of its body, or helps in its, you can say, swimming. What is that? First of all, fish is having streamlined body. Streamlined body बच्चों मैंने आपको बता दिया था। Streamlined body किस लिए होती है बच्चों? वह आगे से क्या है, वो टिप बिल्कुल पॉइंटेड है, एंड इट bulging, or it is thick in the middle, and again it becomes thin at the end. उससे क्या होता है बच्चों, when something like this is there, when we want to move our fingers like this in the water or air, okay, what will happen? Water will not resist much to the fingers to move, because when it will strike the water will flow from this side and this side. समझे मेरी बात क्या? नहीं, कहने का मतलब क्या है, जब ये फिंगर्स ऐसे जा रही हैं पानी के अंदर, वाटर इससे कट जाएगा इधर और इधर, इट कैन इजिली मूव। दैट मीन्स लेस रेजिस्टेंस पोज करते हैं। जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, इट पोजेज ए लेस रेजिस्टेंस इन द मीडियम इट इज गोइंग। मीडियम कैन बी एयर, मीडियम कैन बी वाटर। So since fish is moving in the water, its streamlined body helps a lot. There is a less resistance posed by the water when the fish moves, swims. Okay. Now it is having a flexible backbone. इसकी जो रीढ़ की हड्डी है बच्चों, फ्लेक्सिबल है, यानी कि जल्दी से मुड़ जाती है, फ्लेक्सिबल है, and it is having पावरफुल बॉडी मसल। इसके जो बॉडी के मसल्स होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कैन बीट दिस वे दैट वे, दिस वे दैट वे, क्वाइट हाई स्पीड। ओके, देन मछली का आपने देखा होगा बच्चों, इट इज हैविंग फिन्स, पीछे वाली टेल है, फिन्स है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिन्स? आपने देखा होगा बच्चों, कई बार आपने वो बनाया होगा, कागज का एरोप्लेन बनाया, कभी कागज का एरोप्लेन, उससे आप ऐसे
जो उसके विंग्स से बन जाते हैं, उसे आप ऐसे छोड़ते हो, वो विंग्स की वजह से बैलेंस रहता है। जैसे आपके हैंड्स आपको बैलेंस करते हैं चलने में, सेम वे जो इसके फिन्स हैं इसको स्टीयर करने में, पानी में मुड़ने में, बैलेंस करने में, उसको रुकने में। क्या होगा बच्चों, जब मछली चल रही होती है पानी में तैरते, फिन को अगर ऐसे कर लेगी, पानी का प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, स्पीड डाउन हो जाएगी, मछली रुक जाएगी। दैट मीन्स उसके जो फिन्स हैं, हैज फिन्स हेल्प्स इन स्टीयरिंग, बैलेंसिंग एंड स्टॉपिंग। ये जो फिन्स हैं उसके 3 काम करते हैं। स्टीयर आराम से, जैसे आपका बैलेंसिंग, ताकि वो पानी में बैलेंस बना के चले, देन स्टॉपिंग। नाउ हाउ इट मूव्स फॉरवर्ड इन द वाटर, हाउ इट स्विम्स, दैट इज ऑल्सो वेरी टेक्निकल। कैसे? it moves with the help of tail. It is the tail, with the help of tail moves forward. जो मछली है अपनी टेल की हेल्प के साथ आगे चलती है, आगे मूव करती है या स्विम करती है। कैसे होता है बच्चों? मैंने आपको बताया, इट इज हैविंग पावरफुल बॉडी मसल्स एंड फ्लेक्सिबल बैकबोन। क्या होता है बच्चों? दिस फिश, it moves its tail right left quickly, and when it is moving its tail right, what it is doing? It is pushing the water backward and downward. वही सेम बात जैसे पक्षी करते हैं, they are pushing the air downward and backward, and they go upward and forward. Same way, while moving tail to the right side, the fish is pushing the water downward and backward. Left side again pushing the water backward and downward. उससे क्या होता है बच्चों? जब ये मछली अपनी टेल को, when it pushes the tail right left and pushes it backward, तो क्या होता है? इसकी बॉडी, फिश की बॉडी फॉरवर्ड धकेली जाती है बोथ द साइड। बट वन थिंग मोर बच्चों, क्या है? अगर लेफ्ट राइट पूंछ, उसकी पूंछ जो है, पीछे वाला हिस्सा जो है मछली का, कॉन्टिन्यूसली बच्चों लेफ्ट राइट होता रहेगा, तो वही थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो क्या होगा? मछली आगे तो जाएगी, बट इट कैन नॉट मूव स्ट्रेट। So to balance the effect of right and left movement, fish क्या होता है बच्चों? When the tail is moved this side, fish is moving its head this side to nullify the effect of this left and right movement. With left and right movement, it is pushing the water backward and downwards. So to have the forward movement. लेकिन जो लेफ्ट राइट की मूवमेंट है, जो पानी इसको जब इधर जा रही है तो पानी इधर धकेलेगा, जब इधर जा रही है तो इधर पुश करेगा, तो इसलिए जो फॉरवर्ड मूवमेंट है, इट वॉन्ट बी स्ट्रेट। तो क्या होता है? लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट को, when the tail of the fish is moved toward right, left, the head is moved toward left, and when it is moved towards right position, the head goes towards left. That means जो resultant force है, that remains the same, and वो जो backward force से, पानी से जो फिश को फॉरवर्ड फोर्स मिलती है, उससे वो मछली आगे जाती है। थोड़ा समझ में आया नहीं? एक बार फिर बताता हूं। We have just 2-3 minutes. Okay, कहने का मतलब क्या है? टेल को लेफ्ट राइट मूव करके पानी को वो पीछे की तरफ धकेलती है, ठीक है। लेकिन लेफ्ट राइट की मूवमेंट से क्या होगा? पानी के प्रेशर से उसकी बॉडी शेक करेगी, सीधी नहीं जा पाएगी। तो जब उसकी टेल राइट मूव करती है, तो उसका जो हेड है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ हो जाता है, टू नलिफाई द रिजल्टेंट इफेक्ट।
जब वो लेफ्ट होती है तो उसका जो राइट की तरफ हो जाता है, एंड जो बैकवर्ड पुश किया है टेल से उसने पानी को, उससे जो फॉरवर्ड पुश मिलती है, तो इससे क्या होता है, मछली ऐसे ऐसे करते करते बड़ी, आपने देखा होगा बच्चों, वेरी क्विकली इट गोज स्ट्रेट, ऐसे चलती है. So, when the tail is moved toward left, head is tilted toward right, and when the tail is tilted toward right, head is tilted toward left. So, this is how a fish moves in the water or swims in the water. Now comes the snake. Yes, snake. Snake also moves in different ways, but the common movement of the snake is slither. Slither. स्नेक के अंदर भी क्या है बच्चों, दो तीन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं. एक तो क्या बच्चों, इट इज हैविंग ए फ्लेक्सिबल बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग मसल, लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बॉडी विद स्ट्रॉन्ग मसल्स. And snake is having about 200 to 400 vertebra. छोटी छोटी रीढ़ की हड्डियां होती हैं उसकी रीढ़ की हड्डी में, उनकी काउंटिंग कितनी हो सकती है, 200 to 400, 200 to 400. ठीक है. अब क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल मसल्स, लॉन्ग बॉडी, फ्लेक्सिबल बॉडी विद अ गुड नंबर ऑफ बैकबोन. जब हमारे बैकबोन में बच्चों क्या है, 33 वर्टिब्रा है, वी कैन इजिली बेंड दिस वे, दैट वे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड. जब 33 से हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो सांप, स्नेक जिसकी 200 से 400 तक वर्टिब्रा है एंड स्ट्रॉन्ग मसल, तो क्या बच्चों, वही ये जो साइड्स के जो इसके मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो दूसरी तरफ से रिलैक्स होते हैं, तो थोड़ा आगे जाके दूसरी साइड के कॉन्ट्रैक्ट होंगे. कहने का मतलब क्या है, दिस इज ए स्नेक यहां इस साइड में इसके मसल, इस साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, देन यहां राइट साइड वाले कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगेन लेफ्ट साइड वाले कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. तो क्या होगा, लॉन्ग बॉडी है इसकी, इट मेक्स लूप्स. यहां भी लूप बन गया, यहां भी लूप बन गया, यहां भी लूप बन गया. ओके, इट मेक्स सो मेनी लूप्स. नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो इसके जो बॉडी का जमीन के साथ टच करता हुआ पोर्शन है, जो उसके वहां के जो मसल्स हैं, उससे बच्चों ये क्या करता है, इट पुशेस द अर्थ डाउनवर्ड्स एंड अगेन बैकवर्ड. वही जब भी वहां पुश होगा, इट विल ऑलवेज भी, जैसे हम चलते हैं, व्हेन वी आर स्ट्रेटनिंग आवर लेग, वी आर पुशिंग द अर्थ बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड. उससे क्या है, वी गेट ए फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट. सेम वे लूप्स बन जाते हैं बच्चों with the help of the side muscles, okay, and with the lower muscles, when the snake pushes the earth, उससे क्या होता है, it gets a forward push. अब क्या होगा बच्चों, वो लूप्स बने हुए हैं, जब उसे फॉरवर्ड पुश मिलती है तो वो ऐसे जिगजैग वे में लूप्स के रूप में ही वो आगे, एंड दिस पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ द स्नेक इज नोन एज slither, S-L-I-T-H-E-R, slither. This is the most common, and this animal is not having legs, but still it moves very fast. और सबसे बड़ी बात क्या बच्चों, आपने देखा होगा, snakes never bows in a straight line. It might be, it is having its body bit thicker at the front side, and it's become a tail at the end and all that.
So here the muscles are strong. When loops are there, when it gets a jerk from the underneath muscle, जो नीचे वाले मसल है वो जमीन को पुश करते हैं बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड. जब स्नेक की बॉडी आगे पुश होती है तो being difference here in the tail and this front portion, its body is dragged or pushed towards one side. वो क्या होता है बच्चों, सीधा जाने की बजाय ये भी ऐसे ऐसे मोस्टली लेफ्ट साइड में नजर आता है. एंड दिस पर्टिकुलर मूवमेंट लूप वेज, you can say angular direction, this movement is known as slither. कई बार जब धीरे धीरे स्लो मूव करता है, समटाइम लगता है इट इज गोइंग स्ट्रेट आल्सो, बट commonly the movement in snakes is slithering. But it is slithering. Okay, so this is all about the body movements in vertebra, or you can say animals with bones, animals without bones, animals with legs, and animals without legs. And this is all about, you can say, the chapter number 8, body movement. And with this we come to the end of the topic. Any problems regarding this topic, always free to contact me at this number 999-202-5577. Enjoy your day, enjoy your study. Bye bye.